IIT JAM केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एन आइडियल गैस द प्लॉट दैट इज नॉन लीनियर इज। सो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है, हमें चेक करना है कि विच प्लॉट इज नॉन लीनियर। सो व्हाट इज एन आइडियल गैस इक्वेशन? आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल टू nRT। इसको जब हम y इज इक्वल टू mx की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स PV ऑन द y एक्सिस एंड T ऑन द x एक्सिस। सो यहाँ से हमें ये ग्राफ ऑब्टेन होगा। सो दिस इज अ लीनियर ग्राफ। नाउ इफ PV वर्सेस P अगर प्लॉट होता है, देन दिस ग्राफ विल बी ऑब्टेन। एंड व्हेन P वर्सेस V means P versus P, so this graph will be obtained. And for P versus ln P versus ln V, so अगर PV is equal to nRT हम लेंगे और यहाँ से दोनों तरफ logarithm लेंगे, then we will obtain this equation. This is y is equal to mx plus c. So this graph will be obtained. So out of the four graphs हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि दिस ग्राफ इज नॉन लीनियर। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर टू आइडेंटिकल कंटेनर्स, one with 1 mole of H2 and other with 1 mole of helium. If the root mean square velocities of the two gases are same, then the ratio of the temperature of H2 gas and temperature of helium gas will be. So to solve this question, हम यहाँ से देखते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3RT अपॉन m, m इज द मॉलिक्यूलर मास। सो दोनों गैसेस हैं, उनकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज इक्वल है, दिस इज गिवन। अब अगर हम यहां से कंपेयर करते हैं, सो 3R टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल टू द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हीलियम गैस। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, so mass of hydrogen gas will be H2 and mass of helium gas will be 4, so 1 by 2. So the answer will be 1 by 2. So answer is option A. In this question, an electron moves around the nucleus in a circular orbit according to the Bohr model. The radial vector r and the instantaneous linear momentum vector p are shown in the diagram below. So the direction of the angular momentum vector is, so the angular momentum vector is equal to r cross p. So the direction of angular momentum vector will be perpendicular to both r and P. So answer will be option D. Now in this question, x and y are transformed coordinates obtained from P and Q as follows. The correct linear set of equation represent x and y are. So यहाँ से अगर हम x को सोल्व करते हैं, so x will be, यहाँ से हम this row and this column. So A1 will be multiplied to P and A3 will be multiplied to Q. So X will be A1P plus A3Q, and similarly Y will be taking this row, this will be A2 will be multiplied to P and A4 will be multiplied to Q. So Y will be A2P plus A4Q. So answer will be option B.
Now in this question, which of the following is not a solution of the equation? इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या देखते हैं, अगर हम ऑप्शन ए कंसिडर करते हैं, सो x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, देन सेकेंड डिफ्रेंशिएशन करेंगे और यहाँ से हम ये इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं. मीन्स दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. x is equal to a cos omega t. This is the solution of this equation. Now x is equal to a sin omega t. First differentiation, then second differentiation और इसको solve करने के बाद हमें ये equation obtain होती है. So x is equal to a sin omega t. This one is also the solution of this equation. Now if x is equal to a t square, सो फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन देन सेकेंड डिफ्रेंशिएशन, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, हमें ये इक्वेशन ऑब्टेन होगी. सो दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू दिस वन. नाउ x इज इक्वल टू ए रेज टू पावर आई ओमेगा टी प्लस ई रेज टू पावर माइनस आई ओमेगा टी. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये इक्वेशन ऑब्टेन होगी. सो ऑप्शन A, B and D, these are the solutions of this equation, but option C is not the solution of this equation. So answer will be option C. Now the electron is found in an orbital with one radial node and two angular nodes. Which orbital of the electron is in? So हम यहाँ से क्या देखते हैं, रेडियल नोड को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज इक्वल टू n माइनस l माइनस 1 एंड एंगुलर नोड इज इक्वल टू l. So two angular nodes are given, so L is equal to 2 and one radial node is given, so n minus L minus 1 is equal to 1. इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो n माइनस L की जगह हम 2 पुट करेंगे, 2 minus 1 is equal to 1, so n will be equal to 4. So the orbital will be 4d. So answer is option D. Now question number 7, the acceptable valence shell electronic arrangement is. So यहाँ से जो हम ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ से ये हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को फॉलो नहीं करता है, सो दिस वन इज नॉट द आंसर. यहाँ पे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है, सो दिस वन इज ऑल्सो नॉट द आंसर. नाउ यहाँ पे हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को फॉलो कर रहा है, सो दिस इज द आंसर. इसके अंदर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन है, 1 इज ऑपोजिट स्पिन, सो दिस वन इज ऑल्सो नॉट द आंसर. सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी. Now if the KSP of the solubility, if the KSP is the solubility product of a sparingly soluble salt A3X2, then its solubility is. So A3X2 अगर हमारे पास salt given है तो इसकी हम ये equation यहाँ से लिखेंगे, then solubility will be 3S and 2S. Now the solubility product will be equal to concentration raised to power the coefficient, so 3S raised to power 3 and 2S power 2. यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे सो दिस वन विल बी 108 S5, सो S will be KSP divided by 105 की पावर 1/5. So answer will be option A. Now in this question, for the formation of B from A, heat liberated is 20 kilojoule per mole. Means if B is converted into A, then the reaction is exothermic. So according to exothermic reaction, हम यहाँ से ग्राफ प्लॉट करते हैं. This one is B and this one is A.
this energy gap is 20 kilojoule, and the activation energy of the reaction is 100 joule. So this one is 100 joule. Now the activation energy for the reaction A to B. Now we move from A to B. So यहाँ पे activation energy will be this one. So this is equal to 100 plus 20 means 120. So answer will be option A. इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, सो Z is equal to A concentration at T is equal to 0, 1 minus e raised to power minus kt plus Z concentration at T is equal to 0, and this is the reaction given. So the rate law will be, so rate law is equal to means dz by dt, this is equal to k into A into P, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारे पास में Z गिवन है, इसमें हम चेक करते हैं कि इसमें A रिएक्टेंट है that is represented, but B reactant is not given. So B reactant will not be present in the rate law. So answer will be K into A concentration. So answer will be option B. Identify the correct option. In the periodic table, on moving from left to right along a period, atomic size of the elements increases. This option is wrong, because if we move from left to right in the period, atomic size decreases. Atomic size decreases due to increase in effective nuclear charge. So effective nuclear charge increases, hence atomic size decreases. So the first option is wrong. The first ionization potential of the element decreases. So ionization potential is inversely proportional to size. If size is small, then ionization potential is large. So as we move from left to right in the period, size decreases, so ionization potential increases. So this option is also wrong. Now oxides of the element become less basic. So जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं तो ऑक्साइड्स का एसिडिक कैरेक्टर है, एसिडिक कैरेक्टर increases. So basic character decreases. So हम क्या एनालाइज करते हैं कि ऑप्शन सी और डी में से the oxide of the element becomes less basic. So this option is right and this option is wrong. So the right answer is option C. So in question 12, among the following, the incorrect statement is. So the incorrect statement is the diamond and the graphite are two allotropes of carbon. डायमंड एंड ग्रेफाइट के अलावा भी कार्बन के कुछ एलोट्रोप्स होते हैं लाइक फुलरिंग. सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. नाउ इन डायमंड ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. सो डायमंड के अंदर ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल. सो अकॉर्डिंग टू टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ईच कार्बन विल बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड. नाउ इन ग्रेफाइट ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ग्रेफाइट के अंदर हेक्सागोनल शीट्स होती हैं, हेक्सागोनल शीट्स होंगी. सिमिलरली सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर. सो यहाँ पे जो ये कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. Graphite shows high electrical conductivity in one direction only. So this option is also correct. So the incorrect statement is option A.
इस क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, द pH ऑफ 10⁻⁻8 मोलर HCl सॉल्यूशन इज क्लोज टू 10⁻⁻8 मोलर HCl सॉल्यूशन है. सो दिस इज हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन. नाउ अगर हम इसका डिसोसिएशन करेंगे, अगर हम वाटर को कंसिडर करते हैं तो वाटर का आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू H+ की कॉन्सेंट्रेशन एंड OH- की कॉन्सेंट्रेशन. नाउ H+ की कॉन्सेंट्रेशन विल बी X plus 10⁻⁸. This is from the acid and this is from the water H ions, and this is the concentration of OH-. So if in this equation we put the value of H+ ion and the OH- ion and solve the quadratic equation, then then X comes out to be 9.5 into 10⁻⁸. Total H will be X plus 10⁻⁸. So यहाँ से total H will be this one. pH is equal to minus log of H+. यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करेंगे so pH will be 6.98. So answer will be option C. इस क्वेश्चन में हम देखते हैं द इंडिकेटर phenolphthalein changes color at pH 9. This indicator is not suitable for accurate determination of the endpoint in the titration of. So हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, weak acid फर्स्ट ऑप्शन में, this one is the weak acid and this one is strong base. So weak acid strong base, इनिशियली अगर हमारे पास acid है उसके बाद हम बेस उसमें ऐड करना शुरू करेंगे, देन आफ्टर इक्विवेलेंट पॉइंट मीन्स जो एंड पॉइंट है एट दिस मोमेंट, इसके बाद में हमें जो भी pH होगा उसके बेसिस पे कलर चेंज शो होगा. सो यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग बेस है सो कलर चेंज विल बी नियर टू दिस pH रेंज. सो दिस सेट कैन बी observed by using phenolphthalein. So this is the correct option. Now HCl and NH4OH. Now this is strong acid and this is weak base. So यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं इसको, अगर हम टाइट्रेट करेंगे सो pH जो हमें एंड पॉइंट ऑब्जर्व होगा दैट विल बी लेस देन 7 pH के ऊपर हमें ऑब्जर्व होगा, जिस pH रेंज में फिनोक्थिलीन वर्क नहीं करता है. सो दिस इज नॉट सुटेबल. सो दिस विल नॉट बी सुटेबल. इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, सो यहाँ पे भी हम फिनोक्थिलीन यूज कर सकते हैं. दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस. यहाँ पे दिस वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस. सो this indicator is not suitable, हमें आंसर बताना है. So not suitable will be for option B. So answer will be option B. Now question 15. In the thermite process, the iron oxide is reduced to molten iron by aluminium powder. Because हम आयरन ऑक्साइड को अगर हम कंसिडर करते हैं और उसके जब एल्यूमिनियम से रिडक्शन कराएंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास में Al2O3 की फॉर्मेशन हो जाती है, और जो आयरन ऑक्साइड है दैट विल बी रिड्यूस्ड टू आयरन. सो दिस इज ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ Al2O3. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी. द रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक. सो आंसर विल बी ऑप्शन सी. In question 16, the number of P double bond O bonds present in the tetrabasic acid H4P2O7 is. So structure अगर हम इसका draw करें, so P double bond O, O, P double bond O, OH, OH, this one is OH and this is OH. So the number of P double bond O will be 2. One this and second one is this. So answer will be option B. Egyptian blue calcium copper Si4O10 is an example of. So अगर हम यहाँ से देखें तो कैल्शियम 2+ फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एंड कॉपर इज ऑल्सो इन 2+.
सो अगर ये जो कंपाउंड है हम इसको कैसे लिख सकते हैं, Si4O10 4 माइनस 2 प्लस यहाँ से 2 प्लस यहाँ से, सो दिस आयन विल कैरी द चार्ज 4 माइनस। नाउ जो हमारे पास में शीट सिलिकेट होते हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है, Si2O5N 2N माइनस। सो इफ N इज इक्वल टू 2, सो हम यहाँ से क्या ऑब्टेन करेंगे, Si4O10 and 4 minus. So this is an example of sheet silicate. So answer will be option A. Question number 18. The formal charges on the nitrogen atom from left to right in the azide ion. This is the ion R. So हम इसमें क्या चेक करते हैं, नाइट्रोजन double bond nitrogen, double bond nitrogen, and this is the ion -1 charge. So अगर हम इसमें each atom के ऊपर अगर हम formal charge कैलकुलेट करते हैं तो formal charge is equal to क्या होगा, valence electron minus number of bonds minus number of lone pair electrons. So अगर हम जो ये स्पीशीज है जो आयोन हमें गिवन है इसको हम ड्रॉ करते हैं, सो यहाँ पे अगर हम इसको ऑक्टेट करेंगे, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो 2 and 2, इसके अंदर अगर हम इसके 8 ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो हम यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे। नाउ दिस वन इज 1, दिस वन इज सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड नाइट्रोजन एटम। अगर फर्स्ट नाइट्रोजन एटम के ऊपर हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे, सो फॉर्मल चार्ज फर्स्ट और थर्ड के ऊपर क्या होगा, सेम होगा। हम यहाँ से चेक करते हैं, फर्स्ट के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन कितना होता है, 5 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड, सो दिस एटम फॉर्म्स 2 double bond, means 2 bond, so this one is 2 and number of lone pair electrons, lone pair electron will be 4, 1 2 and 3 4, so 4, so answer will be -1. So formal charge on 1 and 3 nitrogen atom is -1. Now on second atom, valence electron 5 because the central atom is nitrogen, minus number of bonds, this atom forms 4 bonds, 2 and 2, so 4 bonds minus lone pair is 0, so यहाँ से +1, so answer will be, इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज -1, इस पे +1 and यहाँ से -1, so answer will be -1 +1 and -1, option B. Now the unit cell of diamond can be obtained from the unit cell of zinc sulfide. Zinc sulfide के जो unit cell है वहाँ से हम अगर each zinc atom and sulfur atom is replaced by carbon atom, then we will obtain the unit cell of diamond. So answer will be option A. Colgan used for the water refining is this, and it is prepared by heating microcosmic salt. So the reaction is, this is the salt, इसको जब हम हीट करते हैं, so यहाँ पे हमारे पास इस मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी और इस मॉलिक्यूल से फिर हमें ये कार्बन की फॉर्मेशन होगी। So the microcosmic salt will be this one. So the answer is option NaH2PO4, answer is option B. Now in this question, this is the reactant and this is the reagent. So हमें इसमें प्रोडक्ट बताना है। This is a SNI रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा,
OH में जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, that will attack on the sulfur atom and this bond will move. Now in next step, this bond will come here and this bond will break and this will be formed. Now in next step हम क्या देखते हैं, यहाँ से ये बॉन्ड इधर मूव करेगा एंड क्लोरीन विल लीव, और जो यहाँ से हमारे पास में Cl- जो लीव किया था, दिस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल और ये सेम साइड से अटैक करेगा OH के. सो OH जिस साइड से था उसी साइड से ये अटैक करेगा. सो यहाँ से इस कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी. सो दिस इज एन SNI रिएक्शन. यहाँ से हम क्या करते हैं, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी ऑप्शन ए. In this question, the structure of D-galactose is. This is the structure of D-galactose, and which one of these structures is L-galactose? So D-galactose और L-galactose के स्ट्रक्चर को हम कैसे करेंगे, अगर हम इसी मॉलिक्यूल की मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे, so that will be the structure of L-galactose. So यहाँ से हम this one will be CHO, this one will be OH, H, H, OH, this is H, this one is OH, this one is OH, and this is H, CH2, OH. So this is the mirror image of D-galactose. So this is the structure of L-galactose. So answer will be option D. The maximum number of stereoisomers possible for 4-methyl but 3 in 2-ol is. So this is the structure of 4-methyl but 3 in 2-ol. This one is first carbon, second, third and fourth. अब दिस मॉलिक्यूल, दिस इज एल्कीन. सो हम यहाँ से दो फॉर्म इसकी बना सकते हैं. वन इज ट्रांस, हाइड्रोजन एटम इज ट्रांस, एंड अनदर वन इज सिस फॉर्म, एंड दिस इज द कायरल कार्बन. सो दिस कार्बन विल हैव आइदर R कॉन्फ़िगरेशन और S कॉन्फ़िगरेशन. सो यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स मिलेंगे दैट विल बी 4. मीन्स R configuration and cis alkene, R configuration and trans alkene. Similarly, S configuration and cis alkene, S configuration and trans alkene. So हमारे पास में 4 stereoisomers obtained होंगे. So the answer will be option D. इस क्वेश्चन में हमारे पास में बेंजीन मॉलिक्यूल गिवन है. इसकी रिएक्शन हम इस कंपाउंड के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3. सो यहाँ से फर्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे, ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है दैट विल अटैक ऑन एल्यूमिनियम, दिस बॉन्ड विल माइग्रेट एंड बेंजीन विल अटैक ऑन दिस कार्बन एटम. सो यहाँ से ये बॉन्ड, ये प्रोडक्ट बना. अब यहाँ से हम क्या देखेंगे कि एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए यहाँ से H+ लीव करेगा और बेंजीन है वो दोबारा यहाँ से एरोमेटिक हो जाएगा और हमारे पास में ये स्पीशीज मीन्स ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से हम अगर यहाँ से हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ OH. नेक्स्ट ऑटोमराइजेशन अगर करते हैं तो हमें इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मिलेगा. So the answer will be option A. इस क्वेश्चन में देखते हैं which of the following is achiral. So achiral molecule हमें चेक करना है. उसके लिए हम स्ट्रक्चर देखते हैं. This is the structure of alanine. This carbon is chiral. This is the structure of glycine. This carbon is not chiral. This is the structure of proline. This carbon is chiral, and
and this is the structure of phenylalanine. इसमें this carbon is chiral. So the achiral carbon is of glycine. So the answer will be option B. The reactivity order of the integrated functional groups towards a nucleophile. न्यूक्लियोफाइल का अगर हमें अटैक कराना है सो हमें पॉजिटिव सेंटर चाहिए. मीन्स यहाँ पे जो बॉन्ड है दिस कार्बन इज डेल्टा पॉजिटिव एंड दिस वन इज डेल्टा नेगेटिव. जितना ज़्यादा कार्बन पॉजिटिव होगा उतना ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक ईजी होगा, उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी. सो यहाँ से अगर हम देखेंगे दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज डेल्टा नेगेटिव, दिस वन इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस वन इज डेल्टा नेगेटिव. बट अगर यहाँ से देखें हम लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो थ्रू रेजोनेंस ये यहाँ से इसका जो पॉजिटिव चार्ज है इसके अमाउंट को क्या करता है, वो थोड़ा डिक्रीज करता है. तो इन सब में से हम क्या देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव चार्ज है दैट विल बी ऑन दिस कार्बन. सो ऑप्शन पी का जो रेट ऑफ रिएक्टिविटी होगा दैट विल बी हाईएस्ट. इस केस में हम देखेंगे यहाँ से अगर फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर करें तो हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है. कार्बन और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो ज़्यादा है, सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा. सो पी का हाईएस्ट होगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. इस क्वेश्चन में हम देखते हैं दिस इज द रिएक्टेंट एंड दीज आर द रिएजेंट्स. सो हम यहाँ से क्या सॉल्व करेंगे. सबसे पहले ये जो अनहाइड्राइड गिवन है ये H+ पे अटैक करेगा. सो यहाँ से दिस इज द रिएक्टेंट, ये अनहाइड्राइड है, दिस विल रिएक्ट विद दिस H+ एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल. यहाँ से ये बॉन्ड क्लीव करके और यहाँ से स्पीशीज की फॉर्मेशन होगी. नाउ जो हमारे पास रिएक्टेंट गिवन है इसका जो OH वाला जो बॉन्ड है दिस बॉन्ड यहाँ से ये इस पे अटैक करेगा, यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, यहाँ से स्पीशीज की फॉर्मेशन होगी, H+ यहाँ से मूव करेगा. सो दिस वन विल बी द प्रोडक्ट. So answer will be option A. Arrange the following in correct order of acidity of the hydrogen indicated in bold. So हमें क्या चेक करना है, एसिडिटी ऑफ द हाइड्रोजन. अगर हम इस मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. इसमें भी अगर H+ रिमूव करेंगे सो नेगेटिव चार्ज, इसमें भी अगर H+ रिमूव करेंगे सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज. हमें इनमें से देखना है कि कौन सा एनायन है जो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज होगा. सो दिस एनायन विल बी मोस्ट स्टेबलाइज्ड. इसका रीज़न क्या है कि नेगेटिव चार्ज है वो इस रिंग के ऊपर यहाँ पे कंप्लीटली यहाँ पे डीलोकलाइज होगा. इसमें जो नेगेटिव चार्ज है दैट विल बी डीलोकलाइज्ड हियर एंड इस पे जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे डीलोकलाइज होगा. सो सबसे ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगा दैट विल बी इन R कंपाउंड. सो दिस हाइड्रोजन विल बी मोस्ट एसिडिक. सो सीक्वेंस विल बी R सबसे ज़्यादा, देन Q, देन P. सो आंसर विल बी ऑप्शन B. इस क्वेश्चन में हम देखते हैं यहाँ पे NaNH2 के साथ हम रिएक्ट करेंगे. दिस इज अ बेस, यहाँ पे ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा. सो फर्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे कि यहाँ से ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा एंड दिस एनायन विल फॉर्म. दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. नेक्स्ट स्टेप में दिस negative charge will attack on CH3 and Br negative ion will leave. So there will be formation of this compound. So this is the product. Answer will be option B. Which of the following are aromatic? इसमें हम चेक करेंगे aromatic compounds के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए. फर्स्ट, द मॉलिक्यूल मस्ट बी cyclic. सेकेंड, द मॉलिक्यूल मस्ट बी planar, means each atom of the molecule must have
sp2 hybridization, and third is it should follow 4n+2 pi rule. 4n+2 pi electrons means हकल रूल फॉलो होना चाहिए. सो हम यहाँ से क्या देखते हैं, सभी जो मॉलिक्यूल्स हैं साइक्लिक हैं. इस मॉलिक्यूल के अंदर दिस कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है. सो दिस इज नॉट प्लेनर. यहाँ से 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है. पॉजिटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज है थ्रू रेजोनेंस. सो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि दिस मॉलिक्यूल इज प्लेनर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है. सो दिस इज एरोमेटिक. यहाँ से जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स है 2 4 2 4 6 एंड 2 मीन्स 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है. सो a negative charge is delocalized on all the carbon atoms through resonance. So this molecule is not aromatic. This is anti-aromatic क्योंकि यहाँ पे ये हकल रूल को फॉलो नहीं करते हैं. यहाँ पे 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है. नेगेटिव चार्ज सभी कार्बन एटम्स पे डिलोकलाइज होगा. सो दिस मॉलिक्यूल विल बी एरोमेटिक. सो आंसर विल बी Q and S. So answer is option D.